क्या बोले, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जुरिस्डिक्शन ऑफ कंज्यूमर एजेंसीज पढ़ना है। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। देखिए, कल हमने कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, और हमने उसमें ये देखा था दैट इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंज्यूमर, in case of any sort of violation of rights of a consumer has the right to approach to the three-tier redressal agency. ये कंज्यूमर के पास में एक यू कैन से ऑप्शन होता है कि वैसे तो आप अपने राइट्स को जाने और उनको अप्लाई करवाएं, बट फिर भी अगर आपका कोई राइट वायोलेट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन approach to the legal system to seek redressal of your grievances. So now you can see over your screen a simple diagram is provided. Just wait a second. Okay, and in that one, what is the heading given there? It is a three-tier redressal agency for seeking redressal of consumer grievances. The act provides a three-tier machinery. As first of all, at the lowest level we are having district forum, which is available at every district and formed at every district headquarters. Like in Ajmer it is there, and at Bhilwara it is also there. Then above that, the state commission is there. For every state and union territory, we do have one state commission. And for above that, on the topmost, the apex body in the three-tier redressal agency, we do have the national commission. Okay, so far as concerned with the jurisdiction, the district forum is having a jurisdiction to entertain the cases up to the value of rupees 20 lakhs. After that, for the cases or the claims related to the value above 20 lakhs but up to rupees 1 crores will be entertained by state commission, and any sort of claim and applications above or more than rupees 1 crore will be entertained by national commission. But together with that, जो अभी मैंने आपको jurisdiction स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाया है, up to rupees 20 lakh, more than 20 lakh, up to rupees 1 crore, and more than rupees 1 crore. This jurisdiction is known as the original jurisdiction of these forums, of these agencies. This is known as the original jurisdiction. Together with the original jurisdiction, these agencies do have the appellate jurisdiction. For example, if a complaint is filed in the district forum and the person is not satisfied with the decision, he can file an appeal within 30 days with the state commission. It means state commission has an original jurisdiction to entertain the cases of the value more than 20 lakhs but up to rupees 1 crore, and it has the appellate jurisdiction to entertain the appeal to try the appeals of district forum. Similarly, the national commission has the original jurisdiction of the cases for more than rupees 1 crore, as well as it has the appellate jurisdiction to try the appeals of the state commission. कोई भी पर्सन जिसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल किया और वहां के वो डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है। स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी, जजमेंट से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकता है। फॉर filing these appeals, a prescribed limitation is provided under the act, and that will also has to be kept into consideration. So यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए जो jurisdiction के बारे में क्या लिखा हुआ है। We do have the direct, sorry क्या हो गया, we have the direct jurisdiction as well as we have the appellate jurisdiction. Again, we have the direct jurisdiction and we have the appellate jurisdiction.
बट इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम वी ओनली हैव द डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी के माइंड में? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, ये वैल्यूज आप लोग थोड़ा सा याद रखना। फॉर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू ₹20 lakh, फॉर स्टेट कमीशन above ₹20 lakh up to ₹1 crore, and for the national commission above ₹1 crore. The appeal of district forum to the state commission, the appeal of the state commission to the national commission. Okay, now एक बार अब इनका हम कंपोजिशन और सेटअप पढ़ेंगे। रिड्रेसल एजेंसीज हमारे पास में 3 हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दैट इज वी डू हैव द डिस्ट्रिक्ट फोरम, वी डू हैव द स्टेट कमीशन, एंड वी डू हैव द नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिसका जुरिस्डिक्शन कितना है, अप टू ₹20 लाख। स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे होगा, जिसका जुरिस्डिक्शन अबव 20 लाख अप टू ₹1 करोड़। एंड नेशनल कमीशन जिसका जो कंट्री में एक ही होगा पूरे कंट्री में, और जिसका जुरिस्डिक्शन है अबव ₹1 करोड़। देन अपील्स की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट फोरम की अपील कहाँ जाएगी, स्टेट कमीशन में, और स्टेट कमीशन की अपील कहाँ जाएगी, नेशनल कमीशन में। जल्दी से बताइए, नेशनल कमीशन की अपील कहाँ जाएगी? सर कहीं नहीं जाएगी सर, यहाँ पे Supreme जो Court. कहीं नहीं जाएगी। फाइनल The डिसीजन। Supreme Court. Supreme Court is still there as an apex body in the legal system in our country. So still, if after the with the judgment of National Commission a person is not satisfied, then it has the opportunity to apply to the Supreme Court also, but it is dependent whether that case will be admitted in the court of law or not, because Supreme Court बहुत कम केसेस को ही एडमिट करती है। द इनिशियल स्टेज पे उस पर सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट होगा कि क्या 3 एजेंसी से ये केस होके आया है, और 3 एजेंसीज के से भी अगर आप जजमेंट से डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट में इस केस को एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेस्ड ओवर दैट। अदरवाइज हमारे पास में नेशनल कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कम इन द कैटेगरीज ऑफ कोर्ट। जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें अगर मैं कैटेगरीज ऑफ कोर्ट, क्लासेस ऑफ कोर्ट की बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कम अंडर क्लासेस ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट किस में आता है? सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब चीजें आप लोगों ने क्लास 10 तक अपने पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, जिस भी नाम से आपके पास सब्जेक्ट था, उसमें पढ़ा है। भूल गए हैं वो बात अलग है। एनीवेज, सेटअप को देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट है, फॉर द डिस्ट्रिक्ट फोरम बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन सेट करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम को? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन कौन सेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और नेशनल कमीशन कौन सेट करेगा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में देयर विल बी 1 प्रेसिडेंट। ओके, देयर विल बी 1 प्रेसिडेंट विद 2 अदर मेंबर्स। 1 प्रेसिडेंट विद 2 अदर मेंबर्स। हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो, वहां पे जब भी कभी एक से ज्यादा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, ये जो भी हेड होते हैं, जिसको जज कह सकते हैं हम, इनको एक्चुअली कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। सो जब भी एक से ज्यादा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, वो हमेशा ऑड डिजिट में होंगे, कभी भी इवन में नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 जज हैं, एक ने डिसीजन फेवर में दिया और एक ने डिसीजन अगेंस्ट में दिया, तो केस का डिसीजन ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी एक से ज्यादा जजेस होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑलवेज रिमेन इन द ऑड डिजिट्स। तो देखिए 1 + 2 3 हो गया। अब ये जो 1 + 2 था, इसमें भी क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमन। उन 2 में से 2 अदर मेंबर जो कहा है, उसमें से एक कम से कम वुमन होनी चाहिए। आफ्टर दैट स्टेट कमीशन की बात करें तो अगेन देयर शुड बी 1 प्रेसिडेंट, एंड अदर मेंबर्स की बात करें तो एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स, एंड एटलीस्ट 1 ऑफ देम शुड बी अ फीमेल। उनमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि नेशनल कमीशन में अगेन देयर शुड बी 1 प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स। देखिए क्या लिखा है नेशनल कमीशन के लिए? प्रेसिडेंट के साथ में मेंबर्स और हमें कितने चाहिए? एटलीस्ट 4 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। और
एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी अ फीमेल। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो तीनों में वन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट भी तीनों में वन है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर किसी स्कूल का एग्जांपल लो आप जैसे, तो स्कूल में प्रिंसिपल कितने होंगे? प्रिंसिपल तो एक ही होगा, टीचर कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से प्रेसिडेंट तीनों में एक एक ही है। मेंबर्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 2, स्टेट कमीशन में 2, और नेशनल कमीशन में अगर हम बात करें तो वहां पे 4 हो जाते हैं। और जो फीमेल मेंबर रिक्वायर्ड है वो सभी में एटलीस्ट 1 चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब वैल्यू ऑफ कंप्लेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप टू ₹20 लाख, देन स्टेट कमीशन में 20 to 1 करोड़, एंड इन द नेशनल कमीशन अप टू ₹1 करोड़। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें आपका कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर किस तरह से होगा वो चीज यहाँ पे बता रखा है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे पूरा स्क्रीन पे आ जाए। आ गया जी। कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर को देखें, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट फोरम का देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इनके नाम याद रखना। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम। और स्टेट और नेशनल वाला क्या है? वो कमीशन है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम का पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिसीविंग कंप्लेंट इंफॉर्मेशन टू अपोजिट पार्टी। अब सीधी सी बात है, सपोज मैंने कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल खरीदा, ठीक है, और मोबाइल से मुझे उसमें कुछ डिफेक्ट निकला। मैंने जाके डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट की, क्योंकि मेरा मोबाइल था से ₹5,000 का। तो ₹5,000 के मोबाइल के लिए मैं कौन सी एजेंसी में अप्लाई करूंगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में करूंगा ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्योंकि Yes, 20 sir. लाख रुपीस तक का है उसका जुरिस्डिक्शन, अप टू ₹20 लाख का है। तो ₹5,000 का मोबाइल अगर मेरा खराब निकला है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाऊंगा, तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम सबसे पहला काम क्या करेगी? इट विल इन्फॉर्म द अपोजिट पार्टी, यानी कि वो उस सेलर को इन्फॉर्म करेगी कि आपके अगेंस्ट में हमारे पास में केस आया है। ठीक है। इसके बाद में सेंडिंग सैंपल ऑफ गुड्स टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्ट। अगर जरूरत हो तो वो जो भी प्रोडक्ट था जिसमें डिफेक्ट निकला है, जिसमें कुछ फॉल्ट है, उसे वो लेबोरेटरी में भी सेंड कर सकती है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है। आफ्टर दैट इफ गुड्स आर डिफेक्टिव, और जब लेबोरेटरी में भेजेंगे और उनको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ गुड वाकई में डिफेक्टिव है, देन एप्रोप्रिएट रिड्रेसल टू द एग्रीव्ड पार्टी। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ गुड जो प्रोडक्ट था उसमें वाकई में कुछ फॉल्ट है, कुछ डिफेक्ट है, देन दे कैन ऑर्डर फॉर द रिड्रेसल। दैट इज, रिड्रेसल का मैंने मीनिंग आपको बताया था। रिड्रेसल मींस टू रीड्रेस। इट मींस उसको, जो उसका नुकसान है उसको ठीक कर देना, अच्छा कर देना। सो रिड्रेसल टू द एग्रीव्ड पार्टी। और रिड्रेसल किस तरह से किया जा सकता है? तो रिड्रेसल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 2 यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा है कंपनसेशन फॉर द लॉस, तीसरा एक हो सकता है रिपेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। और भी इसके अलावा काफी सारे तरीके होते हैं हाउ रिड्रेसल कैन बी प्रोवाइडेड, वो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपन स्टेट कमीशन के लिए। तो स्टेट कमीशन के लिए क्या लिख रहा है? सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेज पे अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, थर्ड स्टेज पे प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में भेजेंगे, फोर्थ स्टेज पे अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो फिर फिफ्थ स्टेज पे हम रिड्रेसल के लिए ऑर्डर करेंगे। ठीक है। 5 स्टेप्स हो गए। देखिए नेशनल कमीशन में क्या लिख रहा है? सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले कंप्लेंट रिसीव करेंगे, कंप्लेंट रिसीव करने के बाद में सेकेंडली हम अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे, थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे? लेबोरेटरी में भेजेंगे प्रोडक्ट को, फोर्थ स्टेज पे हम देखेंगे कि क्या उसमें डिफेक्ट है या नहीं है, और फिफ्थ स्टेज पे हम रिड्रेसल का ऑर्डर करेंगे। क्लियर है ये कंप्लेंट प्रोसीजर वाला? कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, नॉट कंप्लेंट प्रोसीजर बट कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, है ना। ये सबसे इजी चैप्टर मेरी नज़र में, इस पूरे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। लेकिन इसमें बस कुछ आपको पॉइंट्स माइंड में थोड़े ध्यान रखने होते हैं, लाइक जैसे जो लिमिट है 20 लाख 1 करोड़ वाली लिमिट है, या फिर ये प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं। और ये इसका आता है लास्ट पॉइंट आपका, दैट इज री अपील का जो लिमिटेशन है वो कितना कितना है। सो विद इन द, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप नेशनल कमीशन में जाते हो तो आपको विद इन 30 डेज जाना है। जब आप स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जाते हो तो भी आपको विद इन 30 डेज जाना है। और अगर आप नेशनल कमीशन के जजमेंट से भी अनसेटिस्फाइड हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो भी आपके पास में 30 डेज का ही लिमिटेशन पीरियड है। अगर आपने 30 डेज में अपील नहीं की
तो आपको आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, योर लिमिटेशन विल बी बार्ड, है ना। तो ये देखिए लास्ट में क्या लिख रखा है इसने, विद इन 30 days ऑफ डिसीजन टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि नेशनल कमीशन के डिसीजन से अगर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे पास में एक लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। क्लियर है सबके माइंड में? किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे चलो भाई आगे। हाँ जी, चलिए देखिए क्या लिखा है नोट में यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा स्क्रीन पे। क्या टाइम हो गया? इट्स 9:27। आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी। नोट में देखिए क्या लिखा है, ओनली दोज केसेस कैन बी रीअपील्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट which were originally filed in national commission and amount of claim is more than 1 crore। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कोई भी ऐसा केस जो आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में किया था और फिर वो अपील होके स्टेट कमीशन में गया और उसके बाद में वो अपील होके नेशनल कमीशन में गया, उस केस की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में आप कौन से केस की अपील कर सकते हैं? सिर्फ ऐसे केसेस जिसका नेशनल कमीशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज किया जिसकी वैल्यू है 1,20,00,000 की, ध्यान से समझिएगा इसको पॉइंट को। एक प्रोडक्ट मैंने परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैंड परचेज की, ठीक है, और उस लैंड की वैल्यू है 1,20,00,000 की, और बाद में मुझे मालूम पड़ा मेरे साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है, वो लैंड जो है उसका मुझे केस करना पड़ा कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। अब कंज्यूमर को कौन सी कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा? 1,20,00,000 का मतलब है मैं सीधा का सीधा डायरेक्ट अप्रोच किसके पास करूंगा? मैं नेशनल कमीशन के पास अप्रोच करूंगा, बिकॉज नेशनल कमीशन हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द केसेस अबव ₹1 करोड़। तो मैं किसके पास अप्रोच करूंगा? आई विल अप्रोच टू द नेशनल कमीशन। और मान लीजिए नेशनल कमीशन का जो जजमेंट आया मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो इसका मतलब तो अब तो एक ही ऑप्शन था मेरे पास, मैं तो इसकी तो अपील भी नहीं कर सका कहीं पे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कहा है दैट इज अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से केसेस की अपील होगी? ओनली विच वर फाइल्ड एज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द नेशनल कमीशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है, मुकुल परचेज्ड अ डीजल फॉर ₹30 lakhs फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड इट बीइंग डिफेक्टिव। है डीजल डिफेक्टिव होता है, डीजल ही लिखा है ना, खैर। Yes, Despite sir. many complaints, the defect was not rectified. He filed a complaint in the state commission, but was not satisfied with the order. Where can be appeal? Where can be appeal and in how many days? So national commission within 30 days of passing of the order of the state commission, क्योंकि 30 लाख रुपीस था तो उसने स्टेट कमीशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका बन रहा था, और उसके जब अपील उसको करनी थी तो अपील करने के लिए उसके पास में क्या ऑप्शन है कि वो नेशनल कमीशन में अपील करेगा, और वो कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी को भी कोई डाउट होना तो बीच में पूछ लेना, मैं बार बार रोक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करना ही है, और टाइम आपको पता है जूम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है, 40 मिनट्स में क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। Prabhakar purchased an ISI mark electric iron from Bharat Electricals. While using, he found that it was not working properly. He approached to seller and complained for the same. The seller asks the manufacturer to replace this iron. The manufacturer refused to do so, and the Bharat Electricals decided to file a complaint in the consumer court. तो क्या भारत इलेक्ट्रिकल के पास में ये राइट है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैन भारत इलेक्ट्रिकल डू दिस? तो आंसर क्या आएगा? नो, इट हैज परचेज्ड फॉर रीसेल। हाँ, वो कंज्यूमर प्रभाकर खुद करना चाहता तो कर सकता था केस, लेकिन भारत इलेक्ट्रिकल्स नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन दिस केस? सो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ प्रभाकर हु इज अ रियल कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन दिस केस। और थर्ड क्वेश्चन है, नेम द कंज्यूमर राइट दैट कैन बी एक्साइज्ड। सो द answer to that is right to be heard. Locus standi, yesterday I told you, right to be heard is the right that can be exercised. Clear है? आगे देखिए, name the consumer court where the complaint will be filed by the consumer. अब यहाँ पे आपके सामने एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है कोल्ड ड्रिंक का, और
क्लेमिंग कंपनसेशन कितने रुपीज का है, 35 रुपीज का है। तो अभी 35 रुपीज का कौन सी कोर्ट में आप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। आंसर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेश परचेज्ड अ BMW कार ऑफ रुपीज 50 lakhs on installments. He found that the engine of the car was defective. Despite many complaints to BMW Motors, the defect was not rectified. He filed a complaint in State Commission, but was not satisfied with the order. Obviously 50 lakh का तो स्टेट कमीशन का ही ओरिजिनल jurisdiction बनता है. Where can he appeal and within how many days? So to National Commission he can file an appeal and within the period of 30 days of decision. ये पूरा लिखेगा है ना, जब भी ये लिमिटेशन लिखने की जरूरत पड़े ना तो सिर्फ 30 days मत लिख देना, ये पूरा लिखना within 30 days of decision, क्योंकि 30 days का लिमिटेशन कौन सी डेट से काउंट करोगे, 30 days ऑफ द डिसीजन की डेट से हमें लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A farmer purchased seeds worth rupees 20,000 from Bharat Fertilizers for agricultural purposes. The seeds were very costly as they were of hybrid variety. After 6 months, he noticed that the agricultural produce was not up to expected standard. He reported this matter to the seller, but he refused to accept the liability. Mention the redressal agency in which he can file a complaint. So, क्योंकि ये कितने रुपए तक का था, 20,000 रुपीज तक का था, तो कौन सी कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं, दे कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। On securing 95% marks in class 12th, Ram's father gifted him a gold chain. But after 2 months, Ram noticed that the gold chain was losing the shine. He checked the mark on chain and found that it was not a proper hallmark. Proper hallmark, BIS mark proper nahi tha. He lodged a complaint in the district forum, which rejected it. Not satisfied by the decision of district forum, he was very much disturbed and after 45 days he decided to appeal further. अब आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए, सबसे पहली बात तो उसने जो परचेज किया था वो हॉलमार्क उस पर था ही नहीं। जब हॉलमार्क नहीं था तो उसके पास में फिर राइट नहीं बचता डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने का भी। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसको जो डिसीजन दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो नेशनल इसमें स्टेट कमीशन में अपील कर रहा है, लेकिन वो भी 45 डेज में कर रहा है। तो आप क्वेश्चन देखिए, कैन राम अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नो, ही डिड नॉट चेक BIS mark while purchasing. Reason, more than 30 days have passed since decision of the district forum. तो दो यहाँ पे पॉइंट्स है कि क्यों वो अपील नहीं कर सकता, बिकॉज एक तो उसने क्वालिटी मार्क चेक नहीं किया था और दूसरा उसने जो लिमिटेशन पीरियड था वो उसका बार हो गया, लिमिटेशन पीरियड उसका कोलैप्स हो गया। नाउ रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, जल्दी से हम कंप्लीट कर देते हैं इस पॉइंट को, कि जब एक कोर्ट में आप अप्लाई करते हो और वो कोर्ट आपको रिड्रेसल ऑर्डर देती है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, रिमूव द डिफेक्ट। सबसे पहला आपके पास में क्या आपके लिए ऑर्डर आ सकता है, रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, है ना। सेकंड आपके लिए ऑर्डर आ सकता है, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, उसको नए प्रोडक्ट से बदल दिया जाए। थर्ड आपके लिए ऑर्डर हो सकता है, रिफंड द प्राइस पेड, आपने उस प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस पे किया था वो प्राइस आपको वापस दे दी जाए। फोर्थ आपके पास होता है, टू पे द कंपनसेशन, आप कहें कि प्राइस से कुछ नहीं होता, मुझे इससे काफी सारा मेंटल लॉस हुआ है, सो टू पे द कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड, तो आपको स्पेशल एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। इसके बाद आता है फिफ्थ, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, कंज्यूमर कोर्ट दे सकती है, दैट इज टू द अगेंस्ट द बिजनेसमैन टू discontinue the unfair trade practices and not to repeat them. Then sixth आपके पास ऑर्डर हो मिल सकता है, withdraw the hazardous goods from the sale, यानी कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था ना कि मैगी के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स हुई थी, मैगी के अगेंस्ट में कैंपेन हुआ था, तो मार्केट से मैगी जिस भी शॉप पे अवेलेबल था उनको हटा दिया गया था। सो टू विड्रॉ द hazardous goods from the sale। और लास्ट आपके पास में ऑर्डर मिल सकता है, टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन द 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, और ये अमाउंट किसको पे किया जाएगा, टू द पर्सन और द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या तो जो एग्रीड पार्टी है उसको, या फिर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर एसोसिएशन जिसने उस एग्रीड पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल किया है उसको दिया जा सकता है अमाउंट नॉट लेस देन द 5% ऑफ द डिफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह से।
एक बार जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगर कोई और पॉइंट इंपॉर्टेंट बचा है तो मैं उसको जल्दी से कवर करवा देता हूँ बिफोर दिस क्लास गेट्स ओवर। ठीक है, एक और ऑर्डर आपको मिल सकता है, पॉइंट नंबर 8 दे रखा है, टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अगर मान लीजिए कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविजन पे, तो उसके लिए ऑर्डर आ सकता है टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सम इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज एंगेज्ड इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट आर, तो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स दे रखे हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर लास्ट आता है रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, how the consumer organizations and NGOs can help in protecting the interest of the consumers or the aggrieved persons, aggrieved interest groups, वो यहाँ पे दे रखा है। लास्टली आपके पास आता है स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी एक बार आप रीड कर लेना, ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हेयर वी एंड अप, नहीं ठीक है, हेयर वी एंड अप विद दिस चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो वीडियो जब अपलोड हो जाए उस समय उनको पढ़ के और प्रिपेयर कर सकते हो। हाउ टू क्रैक केस स्टडी क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी आप जरूर से पढ़ना है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।